A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we already discussed various practical problems related to your doubt. So in this video, let's we take the miscellaneous questions which are related to the preparation of the partner's capital account and issue of share, including the area on allotment, first call and final call, as well as the forfeiture and reissue of the forfeited share. And thereafter, we will find what is the amount of the capital reserve which are required to transfer to the capital reserve account after the reissue of the forfeited share. So let us start today's class. Okay, all the best. X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. It means X and Y दो partner हैं जिनका profit sharing ratio है 5:3. And the other information are related. On 31st March 2018, their balance sheet was at under creditor 50,000, provident fund 15,000, workman compensation reserve 40,000, capital X 2,60,000, Y 1,35,000, and total capital 3,95,000. Banks 29,000, debtors 1,80,000, stock 1,25,000, premises 1,50,000, advertisement expense 16,000. On 1st April 2018, Z was admitted as a partner. Z admit हुआ, Z admitted. It means he is a new partner. And X surrender 1/4 of his share. X ने कितना दिया? 1/4 of his share. अपने शेयर का कितना? 1/4. Whereas Y surrender, Y ने कितना दिया? 1/3 of his share. Clear? It is very clear for you. Goodwill is valued at rupees 1,60,000. Goodwill is 1,60,000, and from which Jet brings in only 2/5 of his share of goodwill in cash. और Jet जो आया उसने goodwill कितना लेकर आया? That is only 2/5. 2/5 goodwill लेकर आया है, बाकी goodwill लेकर नहीं आया. Jet brings in only 2/5 of share as goodwill and capital लेकर आया है 1,50,000. Following terms are agreed. Premises is to be increased to 2 lakh and stock by 5,000. Creditors proved at 60,000. One bill of goods purchase having the omitted from the books. Outstanding rent amounted to 12,000 and prepaid salary was rupees 2,000. Liabilities on account of provident fund was only 10,000. Provident fund के regarding जो liabilities है वो सिर्फ 10,000 है. And liabilities for workman compensation claim was 16,000. Liabilities workman compensation की कितनी है? 16,000. So if you are talking about the provident fund 15,000 है जबकि liability 10,000 की है, तो 5,000 आप distribute कर लोगे. जबकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जो वैल्यू है वह 16,000 क्लेम की, जबकि आपके वर्कमैन कंपनसेशन है 40,000 रुपए का, तो बाकी बचा वही पार्टनर्स कैपिटल शेयर कर लेंगे. इस क्वेश्चन में आपकी तरफ से पूछा गया था दैट इज प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करें, न्यू रेशियो ही कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जेड को कितना मिलेगा? जेड गेट्स 1/4 एक्स का, यानी फिफ्थ. एक्स कितना दे रहा है? 5th 8th का 1/4. ये किसने दिया? एक्स ने दिया. प्लस वाई ने कितना दिया? 1/3 ऑफ हिज शेयर. वाई का कितना है? 1/3 ऑफ 38. आगे पीछे लिख लो, बात वही है. तो एक्स ने कितना दिया? 1/4 दिया अपने शेयर का, और वाई ने कितना दिया? 1/3 दिया अपने शेयर का. सो एंटायरली जेड को कितना मिला? जेड को मिला 5/32 फ्रॉम एक्स एंड इसको मिला 3/32, 3/24. तो 32 एंड 24 का एलसीएम कितना हुआ? यू विल फाइंड इट. ओके, तो 32 एंड 24 का एलसीएम होगा आपका. सो एलसीएम ऑफ 32 एंड
24 is 96, so 33 is a 15, 4, 12, that is 27 upon 96 for z. And you know very well x का कितना निकलेगा, x का भी फाइंड आउट कर लो, x का न्यू एंड y का न्यू। x का ओल्ड कितना था 5/8, जिसमें से उसने कितना दे दिया 5/32 सेक्रीफाइस कर दिया, और y में पुराना कितना था ओल्ड, दैट इज 3/8, और उसमें सेक्रीफाइस कितना कर दिया, दैट इज 3/24। तो 8 एंड 32 का एलसीएम तो 32 आएगा। 4, 20 minus 5, that is 15 upon 32, and for y you can see that this is a x new, और y का न्यू क्या आएगा, that is 24, 9 minus 3, that is 6/24। सो x y z का नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, x y z, x का क्या है 15/32, y का कितना है 6/24, और z का कितना है 27/96। सो यू कैन सी दैट 96 है सबका, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, डिनोमिनेटर इक्वल करने पे कितना आएगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने पे आएगा 96 इज द एलसीएम फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन 96, एंड यू कैन सी दैट 33 टाइम्स में 45 and 4, 24 and 27. So new ratio of x, y, z is 45, 24 and 27. So आप इसको और इजी कर सकते हो, यस सर। 9 के टेबल में ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट, 3 के टेबल्स में। सो 3 1 जा 3, 15, 3 8 जा 3 9 जा। So the new ratio of x, y, z is 15:8:9. Okay, this is a new ratio. And how we will calculate the sacrifice ratio? So you can see that x कितना sacrifice कर रहा है, if you are talking, this is a new ratio. If you are talking about the sacrifice ratio, so sacrificing ratio equals to x and y. x ने कितना sacrifice किया था 532, y ने कितना किया था 3/24, तो उसको भी आप इक्वल कर लो 96, okay, 3, 15, 4, that is sacrificing ratio is 15 and 12, 15 and 12 को और इजी कर लो, so that is 3 4 जा 3 5 जा, so the sacrificing ratio between x and y, that is 5:4। ये सारी चीजें मैंने निकाल ली, यानी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन वी फाइंड दैट, कुछ चीजें मैंने समराइज कर ली जो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ओल्ड रेशियो था x और y का, दैट इज 5:3। एक्स वाई जेड का जो न्यू रेशियो बना वो कितना आया 15:8:9। जो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 5:4, एक्स एंड वाई का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आया 5:4। कैसे 15:32, 3/24, इतना इन्होंने सैक्रिफाइस किया, उसको हम लोगों ने क्या किया न्यू रेशियो में हिसाब से उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। 5:4 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने, तो मैं रफ कर देता हूं बाकी सारी चीजें। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। उसको नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली अपनी कॉपी में। अब जो चीजें हमें बनानी है, हमें क्या बनानी है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया ऑलरेडी। नाउ वी हैव टू प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा देख लो। कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी पार्टनर्स, वैसे तो 2 थे लेकिन एक नया पार्टनर आ गया जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस कितना है एक्स वाई जेड का। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्स एंड वाई 2,60,000 एंड 1,35,000। जेड जो आया है उसने कैश कितना लेकर आया, यानी कैपिटल कितना लेकर आया ओनली 1,50,000, और उसे गुडविल कितना लाना चाहिए था, गुडविल लाना चाहिए था 15:9, दैट इज अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट इज 15, 8, 23, 32।
इट मीन्स 9/32 के, यानी जेड को गुडविल कितना लाना चाहिए था, जेड रिक्वायर्ड गुडविल, जेड को गुडविल लाना चाहिए था 1,60,000 का, यहां मैं कर देता हूं 1,60,000 का 9/32 लेकर आना चाहिए था। ओके, कितना लाना चाहिए था, 9/32। लेकिन उसने कितना गुडविल लेकर आया है, सिर्फ 2/5 गुडविल लाया है, यानी 1,60,000 का उसे लाना चाहिए था 9/32, यानी 45,000। उसने कैश में कितना लेकर आया, 2/5, यानी 1,60,000 का उसने कितना लेकर आया है, 2/5। 2/5 निकाल लो, 2/5 कितना आएगा, दैट इज 64,000। सो उसे और कितना गुडविल लाना पड़ेगा, यानी उसका करंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा, यानी जेट का करंट अकाउंट यूज होगा यहां पर रिमेनिंग अमाउंट से, 64 माइनस 45,000, यानी उसे 19,000 और गुडविल लेकर आना पड़ेगा। नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट, और आपको पता है कि जितना गुडविल पार्टनर नहीं लेकर आता वो उसके किस अकाउंट से एडजस्ट होता है, दैट इज 19,000। इज दैट क्लियर, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो अपने गुडविल का सिर्फ 2/5 लेकर आया। उसकी गुडविल कितना ले बनती है, 45,000। सो वो कितना लेकर आया है, गुडविल ब्रॉट इन कैश, वो गुडविल कितना लेकर आया, अपने शेयर की गुडविल का सिर्फ 2/5 लेकर आया, सिर्फ 2/5, यानी कि 18,000। ओके, अभी उसे और गुडविल कितनी लानी होगी, ध्यान से समझना, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 27,000 की गुडविल और लानी होगी। हाउ, क्योंकि 45,000 टोटल गुडविल थी जिसमें से उसने 18,000 लेकर आ गया, क्योंकि सिर्फ अपने शेयर की गुडविल का 2/5 लेकर आया, उसने टोटल गुडविल नहीं लाई है। टोटल गुडविल उसका बनता है 45,000, लेकिन ही ब्रॉट ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसने अपने शेयर का सिर्फ 2/5 लेकर आया, यानी 3/5 लेकर नहीं आया। तो 3/5 कितना आता, 15, 3/5 दैट इज 9, 9 3 27, यस 27,000। तो उसे गुडविल कितना लेकर आया डायरेक्टली, अगर हम आप यहाँ से देखें तो पीएफजी बाई जेट्स करंट, जो लेकर आता है उसे पीएफजी के नाम से, जो नहीं लाता उसे हम करंट अकाउंट। तो कितना लाया, 18,000 कैश में, और कितना नहीं लाया, दैट इज 27,000। किस रेशियो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 5:4, सो 5929, 5949 to 10,000, 8,000, 15,000, 12,000, गुडविल मिल गई। कैपिटल में यू नो वेरी वेल, पहले ओपनिंग बैलेंस कैपिटल लेकर आया, गुडविल जो कैश में लेकर आया 18,000, उसे 10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, और जो गुडविल नहीं लाया उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लिया, दैट इज डेट्स करंट 15,000 एंड 12,000। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो यू कैन सी दैट रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ 40,000, जिसे हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3, 8, 25 एंड 15। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना डिवाइड होगा एक्स एंड वाई में, 25 एंड 15। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखो तो लायबिलिटी साइड में कोई ऐसी चीज है जो डिवाइड करने लायक है, यस सर, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड। तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड बाई प्रोविडेंट फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, टोटल 40,000, आपने क्लेम कितना लिया है उसमें से 16,000, तो 40,000 में 16,000 क्लेम हो गया, तो बचा कितना 24,000। इट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 15,000 एंड 9,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसी तरह से प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड बटता तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोविडेंट फंड की सिर्फ लायबिलिटी कितनी है आपकी 10,000, सिर्फ 10,000 की लायबिलिटी बची है प्रोविडेंट फंड की। तो 15,000 में 10,000 एडजस्ट हो गया, बचा कितना 5,000। तो इस 5,000 को हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्रोविडेंट फंड पहले कितना था 15,000, अब लायबिलिटी कितनी है, ओनली 10,000।
सो 5000 जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी रिवोल्यूशन पे एडजस्ट हो चुका होगा, तभी रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ आया होगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के लिए इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि इट इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो भी कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट से ही एडजस्ट होता है। तो उसको रिवोल्यूशन प्रोविडेंट फंड में जो भी प्रॉफिट हुआ इट विल बी एडजस्टेड इन द रिवोल्यूशन अकाउंट, इट विल नॉट एडजस्ट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे नहीं लगता कोई चीज बची हुई है। रिवोल्यूशन में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। यस, एक चीज छूट गई, बैलेंस शीट के एसेट्स में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। यू नो वेरी वेल, इट इज एन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इट इज अ फिक्शियस एसेट्स। इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट इज 8 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 10,000 एंड 6,000, and after that we have to calculate the closing capital of x, y and z। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी x and y z की, उसको 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,60,000, 10,000, 15,000, 25,000, 15,000, 3,25,000 माइनस 10,000, दैट इज x का आंसर आया 3,15,000। x का कितना आया, 3,15,000। yes, it is the correct answer, and total of x is 3,25,000, 3,25,000। okay, next one is a y का आंसर आया, that is 1,35,000 plus 80,000, 8,000 plus 12,000 plus 15,000 plus 9,000 minus 6,000, 1,73,000, and for z 1,50,000, and total of y 1,79,000, z 1,50,000, for x 1,79,000, and for z 1,50,000. So this is a whole solution of this question, how we will prepare the partners capital account of this question, and the question number is 67 of admission of a partner। ये मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था, बिकॉज आप कंफ्यूज मत होगा। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन है। ऑलरेडी इसमें रिवोल्यूशन का आंसर आ गया होगा, एंड योर डाउट इज सर हाउ वी विल प्रिपेयर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद दिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी दैट पहले हम लोगों ने न्यू रेशियो निकाला, देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रख दी। फिर उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट क्रिएट किया कि गुडविल कितना उसका मतलब 45,000 बनता है जेट का, जेट को लाना चाहिए, बट ही ब्रॉट ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी ही ब्रॉट ओनली 18,000, बट उसे जरूरत उसे और कितना लाना पड़ेगा, 27,000। तो when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, so this value will be adjusted through his current account, के current account से adjust होता है। okay, so I hope this question is easily understand by you। okay, please note down। so let's we move to the next question, that is a question number 59। as you can see that on your screen, this question is related to the company, that is a question number 59 of company's account, which are related to the share, and the question is Suzuki Limited issued a prospectus invited application for 60,000 share of rupees 10 each at a premium of 10% payable as follows, and the information are: on application 3.5, allotment 5.5 including premium, on first call 2, and on second call rupees 2. Applicant were received for 95,000 share and allotment was made pro rata to applicant of 80,000 share. Money overpaid on application were employed on account of sum due on allotment। तो पहले हम इसकी समरी बना लेते हैं। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, टोटल 60,000 शेयर, और एक शेयर कितने का था, द वन शेयर ऑफ रुपीज 10, जिसमें 30 रुपीज प्रीमियम है, तो 10 प्लस 3, 10 रुपीज शेयर के हो गए, 3 रुपीज प्रीमियम के, तो टोटल शेयर ऑफ जो इशू हुआ वो कितने के हुए, 13 रुपीज के। एप्लीकेशन 3.5
एप्लीकेशन 3.5 है, अलॉटमेंट भी कितना है 3.5 है, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज 5.5 जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 3 रुपीज प्रीमियम हो गए और 2.5 रुपीज विच आर रिलेटेड टू द शेयर. फर्स्ट कॉल 2 rupees and final call is also related to the 2 rupees. So all the total is 5 to 8 and 9, 10, 11, 12, 13. 13 rupees total हो गए. Application were received for 95,000. एप्लीकेशन कितने के लिए मिला 95, बट हमारे पास शेयर कितने अवेलेबल है, दैट इज 60,000. सिर्फ 60,000 शेयर ही अप्लाई हमारे पास अवेलेबल है. सो इस सिचुएशन में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एप्लीकेंट फॉर ऑफ 80,000 शेयर, यानी सिर्फ 80,000 शेयर ही मैं अलॉट करूंगा प्रो डाटा. 80,000 वालों को मैंने कितना दे दिया 60,000 शेयर, बाकी 15,000 वालों को कुछ नहीं देना है, ऐसा क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहते हैं. सो एक्सेस कितना हुआ इन रुपीज, यहाँ एक्सेस हुआ 20,000 शेयर ऑफ एप्लीकेशन कितने से 3.5, दैट इज 70,000 विच आर एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट. एंड 15,000 रुपीज पे जो 3.5 रुपीज आपको एक्सेस मिला है, दैट इज 45, 15 3 45 एंड 0.5 7,500, 52,500 आपका किस पे एडजस्ट हो जाएगा, कॉल्स पे, सॉरी इट विल बी रिटर्न, इसे हम रिटर्न कर देंगे थ्रू बैंक. नेक्स्ट, एक्स to whom 1,500 share were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited. यानी अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको ये देखना है कि x जिसके पास कितने शेयर थे, हाउ मेनी शेयर, दैट इज 1,500 शेयर अलॉटेड था. ठीक, उसने क्या किया, फेल कर दिया, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का भी पैसा और फर्स्ट कॉल का भी पैसा. तो यू नो वेरी वेल अलॉटमेंट पे तो पैसा एडजस्ट है, और वाई ने क्या किया, इसने एरियर कहाँ किया, एक्स ने एरियर किया है अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट कॉल पे. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है. और अगर हम बात करें वाई का, तो यू नो वेरी वेल वाई द होल्डर ऑफ 2,400 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, यानी इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी. 2 कॉल्स का मतलब क्या है, दोनों कॉल्स इन्होंने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों उन्होंने पैसा पे नहीं किया. इनके पास कितना शेयर था वाई के पास, दैट इज 2,400. होल्डर का मतलब क्या होता है, जितना शेयर उन्होंने होल्ड किया, तो इनका भी अलॉटेड था 2,400. वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है एरियर निकालने में, प्रॉब्लम इज दैट कि हमें एरियर निकालने में एक्स में प्रॉब्लम होगी, वो भी अलॉटमेंट पे, क्योंकि पैसा एडजस्ट किस पे, अलॉटमेंट पे. तो अलॉटमेंट के केस में आपको सिंपली यू विल फाइंड द अप्लाइड शेयर, अप्लाइड निकालना पड़ेगा. कैसे अप्लाइड निकालोगे, 80,000 अप्लाइड था 60,000 के लिए, तो 1,500 के लिए कितना होगा 4 2 2,000 शेयर इसका अप्लाइड होगा. सो एक्स का अप्लाइड शेयर कितना है 2,000, तो उसका एरियर कितना बनेगा, यू कैन सी दैट. तो उसने 2,000 शेयर पे 3.5 दिया होगा, बट उसका एक्चुअल कितना बनता है 1,500 इंटू 3.5, तो उसका एक्सेस कितना निकलेगा, एक्सेस मनी निकलेगा 500 शेयर पे 3.5, दैट इज 1750 1750 रुपए उसका एक्सेस निकलेगा, जिसमें हम उससे डिमांड करेंगे 5.5. अलॉटमेंट कितना डिमांड करेंगे हम उससे 5.5 ऑन कितने शेयर पे, ऑन 1,500 शेयर पे, यानी 1,500 शेयर पे हम उससे डिमांड करेंगे 5.5. सो इज दैट क्लियर, कि अगर आप यहां देखो तो आपको एकदम क्लियरली हो जाएगा कि हम उसे मांगेंगे कितना 1,500 इंटू 5.5. इज दैट क्लियर. ओके, एक्स पे बोला है फर्स्ट कॉल वेयर फॉरफिटेड, वाई द होल्डर 2,400 शेयर फेल टू पे द शेयर एंड आफ्टर सेकंड कॉल ऑफ द शेयर, यानी कि एक्स का जो फॉरफीचर है आफ्टर फर्स्ट कॉल हो गया, और वाई का जो फॉरफीचर है वो फाइनल कॉल के बाद हो गया, उसके बाद हमने रीइश्यू भी किया है. इन सारी चीजों पे भी ध्यान रखना है. तो 7,500 एंड 750, 8,250 उससे डिमांड करेंगे. तो उसका एरियर कितना बनेगा अलॉटमेंट पे, एरियर बनेगा अलॉटमेंट पे दैट इज 0,057 बन गया 6,500 एरियर ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे एरियर कितना आएगा उसका 6,500.
500 ऑन अलॉटमेंट, और बाकी x का जो फर्स्ट कॉल का एरियर है वो सिंपली निकलेगा 1500 इंटू 3000, और इसका भी एरियर एकदम सिंपल ही निकलेगा। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर निकलेगा 2400 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4800 ऑन फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल पे निकलेगा 2400 इंटू 2, दैट इज 4800 एरियर ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बच गया, तो x का एरिया निकल गया अलॉटमेंट पे, यस 6500। फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना निकलेगा डायरेक्टली 1500, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कोई पैसा एडजस्ट नहीं है। पैसा जहां एडजस्ट होता है वहीं पे प्रोराटा के लिए हमें देखना पड़ता है, जैसे सिर्फ पैसा एडजस्ट किस पे अलॉटमेंट पे, सो दैट्स वाई हमें पता करना पड़ेगा कि x का कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, कितना 1750 रुपए। 500 शेयर पे उसने एक्सेस पैसा दिया था, उसने अप्लाई किया था 2000 शेयर, जबकि उसको हमें अलॉट कितना किया था, सिर्फ 1500 शेयर अलॉट किया। तो एक्सेस पैसा कितना बनेगा 500 इंटू 3.5, यानी 1750 रुपए उसका एक्सेस बनेगा। ओके, तो 8250 की अगर हम बात करें, so we can see that 6500 is the area on allotment. Why? Because हम उससे डिमांड कितना करेंगे 1500 शेयर पे, उसके पास शेयर कितना है 1500 शेयर पे 5.5, तो आ जाएगा 7500 प्लस 750, दैट इज 8250 हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट पे। 1750 उसका ऑलरेडी सबमिटेड है, तो कितना एरिया होगा अलॉटमेंट पे 6500, और फर्स्ट कॉल पे जो डायरेक्ट निकालेंगे कितना शेयर है 1500 इंटू 2, दैट इज 3000 एरिया ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये मैंने सब कुछ निकाल दिया कि एप्लीकेशन पे कितना एरियर हो, अलॉटमेंट पे कितना एरियर होगा, फर्स्ट कॉल पे x का एरियर होगा 3000, y का एरियर होगा 4800, उसी तरह से फाइनल कॉल पे सिर्फ किसका एरियर होगा y का। और आफ्टर द फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली बाद हम फॉरफिट कर लेंगे किसका शेयर x का, और फाइनल कॉल के बाद हम y का शेयर फॉरफिट कर लेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन सी दैट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड 3000 शेयर वेर सोल्ड टू जेड, हम रीसोल्ड कर रहे हैं जेट को कितना शेयर 3000 शेयर सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जेट पे कर रहा है 8.5, द होल ऑफ द वाई शेयर बिंग इंक्लूडेड, जिसमें वाई का शेयर इंक्लूडेड है। यानी जब रीशू कर रहे हैं, रीशू की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ छोटा सा वर्किंग नोट उसके लिए भी आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूं कि जब रीशू कर रहे हैं तो कितने शेयर रीशू कर रहे हैं 1000 शेयर रीशू कर रहे हैं, सॉरी 3000 शेयर रीशू कर रहे हैं। अब इसमें आप खुद देखो कि हमारे पास दो तरह के शेयर अवेलेबल है, एक एक्स के शेयर है वाई का। एक्स का शेयर कितना है टोटल फॉरफिटेड शेयर 1500, और वाई का कितना है 2400। तो अगर हम देखें तो एक्स का मैंने 1500 शेयर फॉरफिट किया, वाई का हमने 2400 शेयर, तो टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हो गए 3900, उसमें से सिर्फ मैं 3000 शेयर ही रीइशू कर रहा हूँ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड एज अ फुल्ली, जेड को मैं जो रीइशू कर रहा हूँ शेयर, जो शेयर सोल्ड कर रहा हूँ जेड को, उसमें होल ऑफ द वाई शेयर इज बिंग इंक्लूडेड, यानी वाई का कितना शेयर इंक्लूड है उसमें, इसका वाई का पूरा शेयर इंक्लूड है 2400, ऑल शेयर लिखा है ना, वाईज शेयर बिंग इंक्लूड होल ऑफ द वाइज। तो एक्स का कितना होगा पार्शली, पार्शली शेयर यानी कितना 2400 3000, तो इसका शेयर कितना रेशियो होगा ओनली 600। सो एक्स का 1500 में से 600 शेयर इशू हुआ, वाई का 2400 में से पूरा 2400 शेयर इशू, तो इसका पूरा फॉरफीचर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगा, इसका सिर्फ हमारे पास 600 शेयर का पैसा अवेलेबल होगा। ओके, सो अब हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्रीज देख लेते हैं वन बाय वन। इफ यू सी द एंट्रीज, तो मैं इस अभी मैं क्या करता हूं, अलॉटमेंट तक का पहले मैं एंट्रीज क्लियर कर देता हूं। तो पहली एंट्रीज होगी दैट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने के लिए शेयर एप्लीकेशन मिला 95,000 इंटू 3.5, और जब मैं उसको अलॉट करूंगा तो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। प्रीमियम नहीं है इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आप एप्लीकेशन या मल्टीप्लाई करके निकाल दो या यहां से देख लो, शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है 60,000 एक्चुअल शेयर है 10 रुपीज के, तो 6 लाख हो गया आपका शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे आपने कितना एडजस्ट किया है 70,000, और रिटर्न कितना कर दिया 52,500, सो टोटल विल बी अ 0052752 7,22,500, तो उसका भी मल्टीप्लीकेशन 7,55,000
22,500 आना चाहिए, बट चेक कर लेता हूं मैं। 9500 तो एक जीरो कट गया, 3500 that is 005 5 एंड ये कितना आएगा, 5 3 जा 15 1 28, that is 3 lakh। आई होप इट इज अ मिस्टेक फॉर मी, मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, so sorry for that। I got my mistake that share capital is not credited with 6 lakh, it will be credited by, you know very well कि 60,000 शेयर है और 3.5 एप्लीकेशन की मनी है। एक्चुअल मनी कितना है, 60,000 इंटू 3.5, 18, 2,10,000। So that's why it will be given a mistake. Okay, so that is 3,32,500 and it will also multiplication is 3,32,500. So first two entries you can see that। अब मैं अलॉटमेंट की इंक्रीज कर देता हूं। एंट्री नंबर थर्ड, दैट इज अ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। So you can see that what is the amount of allotment, that is 60,000 share into 3 rupee into 2.5 is a share value 1,50,000 and 60,000 multiplied by 3 1,80,000. So total value is 3,30,000. Okay, the number 4 is received entry. Bank account debit calls in area debit to share allotment. So you can see that हमें मिलना कितना चाहिए था, 3,30,000, बट ऑलरेडी हमें पहले से कितना मिल चुका है, 70,000 मिल चुका है। सो हमें कितना मिलना चाहिए था, 2,70 माइनस करो, 2,60,000। एंड आउट ऑफ द 2,60,000 यू नो वेरी वेल, इसमें भी एरियर है, दैट इज 6,500। 6,500 you will be deducted from the 2,60,000 में 6,500 एरियर किसने किया है, X ने। So you will ultimately received 2,53,500 on allotment and you can see that entry answer भी इतना ही आया है, amount received on allotment is 2,53,500. Okay, so you can see that how we got the area amount of 6,500 on allotment. So 6,500 on allotment is it will be debited and total amount कितना मिलना चाहिए, 2,60,000। वैसे total amount 3,30,000 था, बट हमें 6,500 क्या हो गया, एरियर हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 2,53,500। इट विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, सो इन दिस वीडियो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का जो वर्किंग है दैट इज अ फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, फिर फॉर फ्यूचर है, फिर रीइश्यू है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।